Hello and welcome to Don Bosco School. This is the first lecture on English literature of class 6th. We shall begin with the first unit. The unit's name is When I Was a Child. And the first section that we will study in this lecture is named Through a Colored Glass. And this story is written by R.K. Lakshman. So let us begin this lecture. Just as we saw now that the unit's name is When I Was a Child. That is, this entire unit, all the sections in this unit will be dealing with the stories related to our childhood. So this section as well is about the childhood. In this section, the writer R.K. Lakshman talks about his childhood. He also talks about his brother R.K. Narayan and his path towards becoming a celebrated cartoonist and illustrator. बचपन में हम सब ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की होंगी जिनको सोचकर हम अभी भी हंसते हैं, हम अभी भी मुस्कुराते हैं. सब ने बचपन में बदमाशियाँ की होंगी या सब ने बचपन में कुछ ऐसी मेमोरीज बचा कर रखी होंगी जिनको याद करके हम अब मुस्कुराते हैं. इस कहानी में, इस स्टोरी में भी आर के लक्ष्मण अपने बचपन के बारे में बताते हैं, अपने भाई के बारे में बताते हैं और किस तरह से वो इंडिया के सबसे फेमस कार्टूनिस्ट और फेमस आर्टिस्ट बने. दिस इज व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट. सो लेट अस बिगिन. द राइटर राइट्स, in our old house in Mysore, there was a window. It had a glass pane divided into many parts. Each part had a different color. One day, the pane broke. Bits of colored glass tinkled down. In this paragraph, the writer introduces us to the location of the story. वो हमें बताते हैं कि ये स्टोरी कहाँ पर बेस्ड है. He says that his old house was in Mysore. Mysore is a place in Karnataka. कर्नाटका स्टेट ऑफ इंडिया में एक शहर है मैसूर. वहाँ पर राइटर आर के लक्ष्मण का घर था. राइटर अपने घर के एक स्पेसिफिक विंडो के बारे में बात कर रहे हैं जिसके शीशे 4 कलर्स में डिवाइडेड थे. हम सब ने बचपन में ऐसी खिड़कियां देखी होंगी जिनके शीशे कलर्ड होते थे, राइट. आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड देख सकते हैं, बैकग्राउंड में जिस तरीके की खिड़की लगी हुई है उसी तरीके की खिड़की आर के लक्ष्मण के घर में भी थी जिसके शीशे 4 कलर्स में थे. ईच पार्ट हैड अ डिफरेंट कलर. बट वन डे द पेन ब्रोक. एक दिन वो शीशा टूट गया और उसके टुकड़े ज़मीन पर गिर गए. आई रैन टू पिक अप दोज पीसेस. I looked at every color, one after another. Suddenly, I happened to see through the glass, and I saw a new world. It was strange, weird, and frightening. Everybody and everything looked blue. The blue gardener dug the blue earth. Nearby stood a blue cow swishing its blue tail. Why the sun had turned blue in the sky. Everything was spooky and still. I could not bear it anymore. Quickly, I raised the green glass piece. Thank God, things became cheerful again. The same gardener was shoveling away with a bucket by his side. The cow turned friendly. Now, in this paragraph, the writer narrates when the pane broke and the glass pieces fell down, he ran and picked up one of those pieces. वो दौड़ कर गए, उन्होंने एक पीस उठाया. Now, the pane of the window was in different colors. So he picked up a colored glass piece और उस colored piece से उन्होंने आर पार देखना शुरू किया. As you can see in this picture,
ये हम सब ने भी बचपन में किया होगा। हम कलर्ड शीशे लेकर उसको अपनी आँख से लगाकर दुनिया को देखने की कोशिश करते थे। वही यहाँ पर राइटर ने करने की कोशिश की, और उन्होंने जो देखा वो काफ़ी स्ट्रेंज था, वो उन्हें काफ़ी अजीब सा लगा और फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग मीन्स समथिंग दैट स्केयर्स यू, जिसको देखकर आपको डर लगे। तो जिस कलर के शीशे को राइटर ने उठाया था, उस कलर के शीशे से जब उन्होंने दुनिया देखी तो उन्हें वो दुनिया थोड़ी डरावनी लगी, क्योंकि वो शीशा ब्लू कलर का था। ब्लू कलर के शीशे से सब कुछ ब्लू नज़र आ रहा था। वहाँ पास में एक गार्डन था, उस गार्डन में एक गार्डनर मिट्टी खोद रहा था। वो गार्डनर भी ब्लू था, वो मिट्टी भी ब्लू हो गई थी। पास में एक काऊ जा रही थी, एक गाय जा रही थी, वो गाय भी उन्हें ब्लू कलर की नज़र आने लगी। एंड एज द राइटर राइट्स, द ब्लू cow was swishing its blue tail. Swishing means, please look at the bottom of your page, there is a section for word meaning. Swishing means moving quickly through the air in a way that made a soft sound. यानी कि वो गाय भी ब्लू नज़र आ रही थी और उसकी पूंछ भी ब्लू नज़र आ रही थी। सूरज जो कि नॉर्मली येलो या ब्राइट वाइट कलर का होता है, वो भी ब्लू नज़र आ रहा था। ये देखकर राइटर काफ़ी ज़्यादा डर गया, क्योंकि राइटर उस वक्त खुद एक बच्चा था और उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने वो ब्लू कलर का ग्लास फेंका एंड ही रेज्ड अ ग्रीन ग्लास पीस। अब उन्होंने एक हरे रंग का ग्लास उठाया। सो लेट अस नाउ सी व्हाट हैपेंड व्हेन द राइटर पिक्ड द ग्रीन ग्लास पीस। He writes, "Thank God, things became cheerful again. The same gardener was shoveling away with a bucket by his side. The cow turned friendly." जब उन्होंने ग्रीन कलर का ग्लास पीस उठाया तो एज एक्सपेक्टेड सब कुछ उन्हें ग्रीन नज़र आने लगा। ये हम सब ने भी किया होगा। अब जिस कलर के शीशे से देखोगे दुनिया को, दुनिया वैसी ही नज़र आएगी। सो जब उन्होंने ग्रीन कलर का ग्लास अपनी आंखों पर लगाया तो उन्हें वो गार्डनर भी ग्रीन नज़र आने लगा, वो मिट्टी भी ग्रीन नज़र आने लगी, वो गाय भी ग्रीन नज़र आने लगी। एंड ग्रीन एज अ कलर इज़ एसोसिएटेड विथ प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। यानी कि ग्रीन कलर को हम जनरली हैप्पीनेस से एसोसिएट करते हैं या प्रॉस्पेरिटी से एसोसिएट करते हैं। तो जब ग्रीन कलर की उन्होंने दुनिया देखी, वो दुनिया उन्हें काफ़ी सुकून भरी नज़र आने लगी। द गार्डनर वॉज अपियरिंग वेरी काम, द काऊ वॉज अपियरिंग वेरी फ्रेंडली। वही काऊ जो अभी कुछ देर पहले उन्हें ब्लू नज़र आ रही थी और ब्लू काऊ को देखकर वो डर गए थे, अब वही काऊ उन्हें ग्रीन नज़र आ रही थी और उस ग्रीन काऊ को देखकर वो काफ़ी शांत हो गए, क्योंकि वो काफ़ी फ्रेंडली नज़र आ रही थी। अब राइटर ने 2 कलर के ग्लासेस उठाकर तो देख लिए थे, लेकिन थे तो वो बच्चे, और बच्चों का मन और एक्सप्लोर करने का करता है। सो व्हाट डिड ही डू नेक्स्ट? ही राइट्स, "But I had to try out the red piece. It struck a terror into my heart. The cow was ready to attack me. The dog bared its teeth, and the gardener was digging up a skeleton under the neem tree. Red clouds gathered in a bloody sky. The world was a scene of war. Sweating and trembling, I switched back to green. At once, things calmed down. It was a cool, pleasant day out in the garden at home, where the breeze blew softly. Father and mother were out. I was free to play the whole evening." In this paragraph, writer says, जब उन्होंने वो ग्रीन ग्लास पीस से देख लिया तो और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने रेड कलर का ग्लास उठाया, और रेड कलर के ग्लास को देखते ही उनके दिल में एक टेरर, एक डर बैठ गया। वही काऊ जो ग्रीन ग्लास में ग्रीन कलर की नज़र आ रही थी और काफ़ी फ्रेंडली लग रही थी, वही काऊ उन्हें अब काफ़ी डरावनी लगने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि वो काऊ
अब उन्हें अटैक करने जा रही है। ही सेज द काऊ वॉज रेडी टू अटैक मी। काऊ के पास एक कुत्ता खड़ा था, वो कुत्ता अपने दांत दिखा रहा था। द डॉग बेयर्ड इट्स टीथ। नाउ व्हाट डज बेयर इट्स टीथ मीन? Look at the difficult word meanings box at the bottom. Bared its teeth means the dog showed its teeth in an angry and threatening way. यानी कि वो डॉग राइटर को काफ़ी गुस्से में अपने दांत दिखा रहा था, एज इफ वो उनको काट लेगा। उन्हें डराने के लिए अपने दांत दिखा रहा था। सो when the writer saw this world through the red glass piece, the world was very terrorizing. वो काफ़ी डरावनी थी, काफ़ी खौफनाक थी। जो गार्डनर राइटर को अभी तक काफ़ी काम लग रहा था, इस रेड ग्लास में लग रहा था कि जैसे वो गार्डनर किसी स्केलेटन को मिट्टी के अंदर से खोद कर निकाल रहा है। ग्रीन ग्लास पीस में वो गार्डनर उन्हें काफ़ी काम और काफ़ी आराम से काम करता हुआ लग रहा था। लेकिन रेड ग्लास पीस में दोबारा से वो गार्डनर ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्केलेटन खोद कर कुछ डरावना काम कर रहा है। राइटर ने डर के मारे आसमान की तरफ देखा। What he saw in sky was red clouds gathered in a bloody sky. यानी कि राइटर को बादल भी रेड नज़र आ रहे थे और आसमान भी रेड नज़र आ रहा था। The clouds were red, but the sky was bloody. He writes, red clouds gathered in a bloody sky. यानी कि स्काई इतनी ज़्यादा रेड नज़र आ रही थी जैसे कि इंसान का ब्लड होता है, इतनी ज़्यादा रेड थी स्काई। The world was a scene of war. उन्हें लग रहा था जैसे दुनिया एक जंग का मैदान हो गई है, हर तरफ लाल लाल। Because red as a color is associated with blood. रेड को हम ब्लड के साथ एसोसिएट करते हैं। सो राइटर को लग रहा था कि पूरे दुनिया में जंग छिड़ी हुई है एंड देयर इज़ ब्लड ऑल अराउंड। सो डर के वजह से उन्होंने दोबारा से ग्रीन ग्लास उठा लिया, और जब उन्होंने ग्रीन ग्लास से देखा तो वापस से उन्हें दुनिया काफ़ी काम और शांत नज़र आने लगी। फिर से वो गाय उन्हें काफ़ी फ्रेंडली नज़र आने लगी, वो गार्डनर एकदम नॉर्मल सा नज़र आने लगा। और इस काम सीन को देखकर राइटर को दिल को दोबारा सुकून मिला, उन्हें थोड़ी शांति मिली, एंड ही वेंट अवे टू प्ले द होल इवनिंग। वी सॉ हाउ द राइटर सॉ द वर्ल्ड थ्रू 3 colored ग्लास पीसेस। यानी कि उन्होंने 3 कलर्स के थ्रू दुनिया को देखा। एट फर्स्ट ही सॉ the world through the blue glass, which was very scary. वो बहुत डरावना था। And second, he saw the world through the green glass piece, which was very peaceful and gentle. Third, he saw the world through the red glass piece, which was again very scary and it looked like blood. And fourth, he again saw the world through the green glass piece, which was again very peaceful. So let us look at the next page. The writer writes, as I remember it, this was my first communication with my surroundings. I loved looking through the broken glass pieces, feeling different with each color. Perhaps this was an early sign of my interest in visual things, in drawing and painting that were to be my life. Now, the writer says कि ये उनका पहला मौका था जब वो अपने सराउंडिंग्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे। यानी कि बचपन में हमारा राइटर एक ऐसा बच्चा था जो घर से बाहर बहुत ज़्यादा नहीं निकलता था या घर के आसपास की चीज़ों से बहुत ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। तो ये पहला मौका था जब वो अपने सराउंडिंग्स से, अपने आसपास की चीज़ों से इंटरैक्ट कर रहा था या कम्युनिकेट कर रहा था। और उनको इन ब्रोकन ग्लास पीसेस के थ्रू देखने में काफ़ी अच्छा लगा, उन्हें ये काफ़ी पसंद आया
कि किस तरीके से दुनिया अलग अलग कलर्स में दिखाई देती है। राइटर नेक्स्ट सेज, दिस वॉज द अर्ली साइन ऑफ माई इंटरेस्ट इन विजुअल थिंग्स, यानी कि विजुअल थिंग्स में उन्हें उनके इंटरेस्ट का ये पहला इंसिडेंट था या ये पहला मौका था जब उन्हें लगा कि विजुअल थिंग्स में उनका इंटरेस्ट है। Now, what do we mean by visual things? Look at the bottom of your page. You can see the meaning of visual things. It means the things that you can see. यानी कि राइटर को दिखने वाली चीज़ों में या जिन चीज़ों को हम अपने आसपास देख सकते हैं, जैसे अभी आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको बेड, टेबल, चेयर, फर्नीचर, फूल, ये सब दिखेंगे। These are called the visual things, जिनको हम देख सकते हैं। राइटर को इन विजुअल थिंग्स में इंटरेस्ट था, ये उन्हें पहली बार पता चला, और इन्हीं विजुअल थिंग्स में इंटरेस्ट के कारण वो धीरे धीरे ड्राइंग और पेंटिंग की तरफ झुकते चले गए। धीरे धीरे उन्हें ड्राइंग और पेंटिंग पसंद आने लगी और अल्टीमेटली वो एक कार्टूनिस्ट बने। सो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से राइटर अलग अलग ग्लास पीसेस के थ्रू दुनिया को देखते हैं, अलग अलग कलर्स में दुनिया को देखते हैं और विजुअल थिंग्स में उनका इंटरेस्ट जगता है, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली एक आर्टिस्ट बनते हैं। इन द नेक्स्ट सेक्शन द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट हिज जर्नी टू बिकमिंग अ कार्टूनिस्ट। वो एक कार्टूनिस्ट बने कैसे। सो लेट अस हैव अ लुक। यू कैन सी the first line of the next section says, when did I start drawing? So in this section, we will know the journey of our writer to becoming a cartoonist. The writer writes, when did I start drawing? Maybe at the age of 3. I started on the wall, of course, like any normal child. Parents were more tolerant in those days. No one stopped my scribbling on the wall. I drew with bits of burnt wood that I got from the hot water stove in the backyard. What did I draw? Oh, the usual things: trees, houses, the sun behind the hill. तो हम बार बार अपनी कहानी में कह रहे हैं कि राइटर एक कार्टूनिस्ट थे। तो कार्टूनिस्ट होने के लिए अच्छी ड्राइंग आनी चाहिए। तो बेसिक सा क्वेश्चन उठता है कि इन्होंने ड्राइंग पहली बार कब स्टार्ट करी। तो राइटर हमें उसका आंसर बताते हैं, मे बी एट द एज ऑफ 3, यानी कि जब वो 3 साल के थे तब उन्होंने पहली बार ड्राइंग स्टार्ट करी। और किसी भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह उन्होंने दीवार पर ड्राइंग करना स्टार्ट किया। हम सब ने ये बचपन में किया। हम सब ने पेंसिल लेकर, चौक लेकर या पेन लेकर दीवार पर ड्राइंग्स बनाई हैं। ड्राइंग्स नहीं तो ABCD या 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग्स, नंबर्स, कुछ भी उल्टे सीधे फिगर्स हम सब ने बनाए हैं। आपने भी बनाए होंगे, राइट? तो राइटर ने भी वैसे ही किसी भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह दीवार पर ड्राइंग बनाकर अपना ड्राइंग का पैशन स्टार्ट किया। पर अगली ही लाइन में राइटर हमें बहुत ही फ़नी चीज़ बताते हैं कि उस टाइम में जब वो बच्चे थे, आज से 40 ईयर्स 50 ईयर्स पहले, उस समय पेरेंट्स काफ़ी टॉलरेंट थे। टॉलरेंट यानी पेरेंट्स इस बात का बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स, हमें तो भाई बहुत मार पड़ती थी कभी कभी जब हम दीवार पर ड्राइंग्स बना दिया करते थे। तो राइटर कहते हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें डांटते नहीं थे या उन्हें मारते नहीं थे, क्योंकि वो दीवार पर ड्राइंग्स बनाते थे और उन्हें किसी ने रोका भी नहीं। So next, the writer tells us the tools with which he used to draw. वो किस चीज़ से बनाते थे। अब आज से 40 साल पहले या 50 साल पहले पेंसिल्स या पेन्स बहुत कम होते थे। तो राइटर लकड़ी के जले हुए टुकड़े यूज़ करते थे। उन लकड़ी के टुकड़ों को यूज़ करते थे जो घर के स्टोव में यूज़ होता था, क्योंकि पहले गैस सिलेंडर्स या LPG सिलेंडर्स नहीं होते थे। तो जिसे हिंदी में हम घर का चूल्हा कहते हैं, तो घरों में चूल्हे होते थे। उन चूल्हों में या उन स्टोव्स में लकड़ी लगाकर आग जलाई जाती थी, जिससे खाना बनाया जाता था। वो लकड़ी जलकर जब बच जाती थी तो छोटे छोटे कोयले के टुकड़े जैसे बचते थे। हम सब ने देखे होंगे वो टुकड़े, आपने भी देखे होंगे। तो राइटर उन जले हुए लकड़ी के कोयलों को या लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस को लेकर दीवार पर
ड्राइंग्स बनाना स्टार्ट किया। और वो बनाते क्या थे? द राइटर सेज, व्हाट डिड आई ड्रॉ? ओह, द यूजुअल थिंग्स, द ट्रीज, हाउसेस, द सन बिहाइंड द हिल, एट्सेट्रा। उनकी ड्राइंग्स में, चूंकि वो थे तो बच्चे ही, तो उनकी ड्राइंग्स में काफ़ी यूजुअल सी चीज़ें होती थी, जैसे पेड़, घर, या फिर पहाड़ और सूरज, चांद, ये सब। सो इन दिस पैराग्राफ वी आर इंट्रोड्यूस्ड विद द पैशन ऑफ ड्राइंग। राइटर ने हमें बताया कि उन्होंने किस एज से ड्राइंग स्टार्ट करी, कहाँ पर वो ड्रॉ करते थे, वो वॉल्स पे ड्रॉ करते थे, वो यूज़ क्या करते थे, वो जले हुए लकड़ी के पीसेस यूज़ करते थे, वो बनाते क्या थे, ट्रीज, हाउसेस, एट्सेट्रा, ये सब बनाते थे। सो वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू द पैशन ऑफ ड्राइंग। In the next paragraph, the writer explains further about his life as a child or as a student. So, talking about his student life further, the writer says, I was not at all a good student in the classroom. The one time I got a pat on the back from the teacher was for one of my drawings. यानी कि एकेडमिकली अगर देखें या पढ़ाई के मामले में देखें तो हमारा राइटर बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था। वो कहते हैं कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, इसीलिए टीचर्स ज़्यादा तारीफ़ भी नहीं करते थे उनकी, या बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते थे उनको। लेकिन एक मौका था जब टीचर ने उनकी तारीफ़ करी थी, और वो मौका था ड्राइंग का। उनकी क्लास में टीचर ने ड्रॉ करने का टास्क दिया था, और उस टास्क के लिए उन्हें काफ़ी अप्रिसिएशन मिला था, टीचर ने उनकी काफ़ी तारीफ़ करी थी। We can understand a few things from the explanation so far. One is that our writer was not a good student. He did not get very good marks. And second, he was a very good artist from his childhood. He was good at drawing even when he was a very young student. In the next line, writer says, we all were asked to draw a leaf. Each child scratched his head and wondered what a leaf looked like. One drew a banana leaf which became too big for the slate. Another drew a speck that could not be seen. And some just managed blobs. इन लाइंस में राइटर हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो ड्राइंग का टास्क था क्या जिसके लिए इन्हें काफ़ी तारीफ मिली थी। तो राइटर सेज कि द टीचर हैड आस्क्ड ईच चाइल्ड टू ड्रॉ अ लीफ। उस वक्त बच्चे पेपर पेन या कॉपी पेंसिल लेकर नहीं जाते थे, स्लेट्स लेकर जाते थे, स्लेट और चॉक। तो टीचर ने सबसे कहा कि टेक योर स्लेट्स एंड ड्रॉ अ लीफ एंड शो मी। सारे बच्चे जो थे वो काफ़ी कंफ्यूज थे, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं था कि लीफ या पत्ती दिखती कैसी है, पत्तियाँ होती कैसी हैं, लीव्स कैसे होते हैं। किसी ने बनाना के लीफ बनाने की कोशिश की तो वो स्लेट से काफ़ी बड़ा हो गया, वो स्लेट में आया ही नहीं। किसी ने केवल एक स्पेक बनाया। रीड दैट लाइन, द राइटर सेज, अनदर ड्रू अ स्पेक दैट कुडंट बी सीन। व्हाट डू वी मीन बाय स्पेक? नाउ अगेन लुक एट द बॉटम ऑफ योर पेज towards the word meaning. Speck means a very small spot. यानी कि जब दूसरे स्टूडेंट को लीफ बनाने को बोला गया स्लेट पर, तो उसने केवल एक छोटा सा डॉट, एक छोटा सा सर्कल बनाकर छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था लीफ होता कैसा है। In the next line, writer says, some just managed blobs. Now what do we mean by blobs? Blobs here mean drawings that did not look like leaves at all. यानी कुछ ने केवल ब्लॉब्स बनाए। ब्लॉब्स मतलब ऐसी ड्राइंग्स जो लीफ जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। कुछ आड़ी तिरछी ड्राइंग्स बना दी जो लीफ बिल्कुल नहीं लगती थी। तो कुछ ने बहुत बड़ी लीफ बना दी, कुछ ने केवल एक सर्कल बना दिया, कुछ ने कुछ भी बना दिया जो लीफ जैसा बिल्कुल नहीं लगता था। Now what happened when the teacher came to see the writer's slate? The writer says, when the teacher came to me, he asked, did you draw this by yourself? I hesitated. Had I done wrong? I nodded dumbly. And do you know, the teacher actually broke into a smile.
He said I had done a very good job. तो जब टीचर हमारे राइटर के पास आए, इनकी राइटिंग देखकर या इनकी ड्राइंग देखकर टीचर काफ़ी सरप्राइज थे, क्योंकि इन्होंने लीफ को इतना ब्यूटीफुल बनाया था, टीचर को विश्वास ही नहीं हुआ कि एक्चुअली में इन्होंने बनाया है. आउट ऑफ सरप्राइज द टीचर आस्क्ड, डिड यू ड्रॉ दिस बाय योरसेल्फ? टीचर ने क्वेश्चन किया कि क्या तुमने ये सच में बनाया है? ये क्वेश्चन सुनकर हमारे राइटर थोड़ा सा डाउटफुल हो गए कि क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मैंने कोई गलत ड्राइंग तो नहीं बना दी. लेकिन फिर मैंने हाँ में सिर हिलाया, राइटर ने हाँ में सिर हिलाया कि यस, मैंने ही बनाया है. और उनकी ड्राइंग देखकर टीचर हंस पड़े. टीचर ने उनसे बोला कि यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब, कि तुमने ड्राइंग बहुत अच्छी बनाई है. नाउ एज वी हैव सेड that our writer was a very talented artist from his childhood. He had a keen interest in art, in drawing. So the teacher also saw his talent. The writer says, you shall read with me the next line. He saw great possibilities in that leaf I drew so long ago on a hot afternoon sitting in that dull classroom. I had seen that leaf on the peepal tree which I passed each day on my way to school. यानी कि हमारे राइटर की वो ड्राइंग देखकर टीचर को उनके अंदर का टैलेंट दिखा, और टीचर को लगा कि ये लड़का, ये बच्चा आगे चल के कुछ बड़ा करेगा. राइटर ने एक पीपल ट्री का लीफ बनाया था, एक पीपल ट्री की लीफ की ड्राइंग बनाई थी, जिसको वो रोज़ अपने स्कूल से घर और घर से स्कूल आते वक्त देखते थे. नाउ व्हाट डज दिस मीन? आई मीन, हम सब रोज़ बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन राइटर ने यहाँ पर स्पेसिफिकली ये क्यों मेंशन किया दैट आई हैड सीन दैट लीफ ऑन द पीपल ट्री विच आई पास्ड ईच डे ऑन माई वे टू स्कूल? इस पीपल के पेड़ को मेंशन करने की क्या ज़रूरत थी? बहुत सारे पेड़ आते होंगे या फिर बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आती होंगी. What was so special in that peepal tree? We shall have a look in the next lines. You shall read with me. The writer says, generally, people take everything for granted. They hardly see anything around them. But I had a keen eye. I observed everything and had a gift for recalling details. This is essential for every cartoonist and illustrator. राइटर कहते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, या लगभग सारे ही लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यानी बहुत आसानी से लेते हैं, उनकी वैल्यू नहीं समझते हैं. बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं जिनकी वैल्यू हम नहीं समझते. हम अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं. बट हमारे राइटर के पास एक कीन आई थी. यू कैन सी दिस लाइन. द राइटर सेज, बट आई हैड अ कीन आई. व्हाट डू वी मीन बाय अ कीन आई? लुक इन द वर्ड मीनिंग्स बॉक्स. अ कीन आई मीन्स गुड एट नोटिसिंग थिंग्स. यानी कि हमारा राइटर बाकी लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट था. जहाँ बाकी लोग अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस नहीं करते थे, उनकी वैल्यू नहीं समझते थे, हमारा राइटर अपने आसपास की चीज़ों को अच्छे से नोटिस करता था. आवर राइटर वॉज गुड एट नोटिसिंग थिंग्स. ही ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग एंड हैड अ गिफ्ट फॉर रिकॉलिंग डिटेल्स. वो हर आसपास की चीज़ को ऑब्जर्व करते थे, उसको ध्यान से देखते थे, और इनके अंदर एक टैलेंट था कि वो उसकी हर एक डिटेल को याद रख सकते थे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही सॉ अ चेयर इन हिज रूम, एंड इफ़ यू आस्क हिम आफ्टर अ फ्यू डेज दैट व्हाट वर द डिटेल्स ऑफ दैट चेयर, तो वो आपको उसकी डिटेल्स बता देते थे कि वो चेयर ब्राउन कलर का था, दैट चेयर वॉज मेड ऑफ वुड, दैट चेयर वॉज this many feet in height, the chair was kept at this place. उनको वो सारी डिटेल्स याद हो जाती थी क्योंकि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से नोटिस करते थे. He says,
ये नोटिस करने की जो आदत है या डिटेल्स याद रखने की जो आदत है, ये एक कार्टूनिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है. And one of the reasons why he became a very successful cartoonist is because he could recall those details very well. उन्हें वो details अच्छे से याद रहती थी. With this, we finish the first part of our video and half of the chapter. For the second half of the chapter, that is to study the remaining part of this chapter, go to the second video. And I advise all the students to watch both these videos, because at the end of the second video, you will be given an assessment test and you will have to solve that assessment test. So kindly watch both the videos to understand the entire chapter.